Good evening, everyone. Let me know if my screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay, let's begin. Okay, so in the last class, we were discussing about the permeability. Okay, so I have told you that in permeability, we have three terms. Does anyone remembers? कौन से three terms मैंने बताए थे? The first one is written in front of you, and there are two more terms that I told you in the last class. Ma'am, hydraulic permeability. And hydraulic conductivity it was. Okay, Yes, ma'am. okay. What was the other term? Effective permeability. Transmissibility. Transmissivity. Okay. Yes, ma'am. Yes, Ritu, ma'am. Ritu, very good. Okay, okay, okay. Okay, Bijani, it's good. Okay, fine. So in the last class, I told you कि permeability में three terms आपको मिलेंगे, ठीक है? Okay. The first one was intrinsic permeability, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. Second one was hydraulic conductivity and then we have transmissivity. ठीक है, आपको ये सभी चीजें पहली चीज बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका गेट का एग्जामिनेशन हो, नेट का एग्जामिनेशन हो या जीएसआई का एग्जामिनेशन हो. ठीक है, नेट में ऑब्वियसली हाइड्रो से कम आएगा, गेट एंड जीएसआई मोस्टली. ठीक है, चलिए. इंट्रिंसिक परमेबिलिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, बट सिंस इसके बाद के जो टर्म है वो भी मुझे एक्सप्लेन करने, बिकॉज हो सकता हो कि देर वर फ्यू पीपल जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड ना की होगी. सो और बाकी जिन्होंने अटेंड की थी उनका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ऑफ रॉक या सॉइल डिफाइन करती है उसकी एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ फ्लूइड, कि मतलब कितने इफेक्टिवली वो फ्लूइड को अपने थ्रू पास होने देता है. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज द थिंग जो कि डिफरेंशिएट करेगा आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को और इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी को. ठीक है, तो इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी आपकी मीडियम की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि मीडियम की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करेगा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज. मतलब ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करेगा. इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी के यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो था आपका, this was the formula for relation between this hydraulic conductivity and intrinsic permeability. ठीक है, तो जहां से यहाँ से अगर आप k को एक साइड पे रखेंगे, बाकी चीजों को अदर साइड पे if you will send, so you will get the formula of hydraulic conductivity. So I've told you this k is the intrinsic permeability. Then we have this capital K is hydraulic conductivity. Then we have mu, which is dynamic viscosity. And we have rho, that is fluid density. Okay, तो ये सारे terms हैं. I have defined these things. Okay, now इसकी यूनिट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे. its unit is meter square. Okay, so इसका जो फॉर्मूला होता है, this I told you. Okay, so this is k is equals to c d square. Okay, so यहाँ से आपका मीटर स्क्वायर आया. डायमीटर का जब आप स्क्वायर करोगे, so you will get meter square. यहाँ से इसका this is the formula of intrinsic permeability, and from here you will get the unit of the intrinsic permeability. Okay, so I told you कि it will depend कि हमारे जो पोर ओपनिंग्स है उनका साइज क्या है, डिग्री एंड साइज ऑफ द पोर कनेक्टिविटी, कितने कनेक्टेड है पोर स्पेसेस जो है, एंड ऑब्वियसली ऑन द डिग्री एंड टाइप ऑफ द मटेरियल. ओके, सो यहाँ पर सी क्या है, हमारा शेप फैक्टर है एंड दिस इज डायमेंशनलेस. एंड देन वी हैव डी, दैट इज मीन पोर डायमीटर. तो जितने भी पोर्स होंगे उनके डायमीटर्स का मीन इज गिवन बाय दिस डी. अगर हमारे रॉक का ग्रेन साइज इंक्रीज कर रहा है तो परमेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, बिकॉज we will have larger pore opening. And अगर poorly sorted samples हैं, in that case permeability decreases. So this thing I have explained you in the last class. Now coming to the hydraulic conductivity. Okay, wait, give me a moment. This is hiding. So let me rearrange these things. Remember these two formulas. Okay, so these are the important ones.
Okay, now it is visible. Then we have hydraulic conductivity. Okay, it is also known as coefficient of permeability. तो ये दोनों टर्म्स सेम है. अगर आपसे coefficient of permeability पूछे, then it means it is asking you hydraulic conductivity. Okay, so it is defined as the rate at which water can move through a porous medium. यहाँ पर rate आ गया है. ठीक है, सो हाइड्रोलिक, इसी वजह से यू कैन सी मीटर पर सेकेंड या मीटर पर डे इसकी यूनिट है, क्योंकि ये रेट बता रहा है किस रेट से हमारा वाटर किसी भी पोरस मीडियम से फ्लो कर रहा है. Hydraulic conductivity is a measure of material's capacity to transmit water, and it is defined as a constant of proportionality relating the specific discharge of porous medium under a unique hydraulic gradient in Darcy's law. If any one of you knows Darcy's law, तो आपको पता है कि Darcy's law is given by this, or you can write Q is equals to K dH by dl. ठीक है, तो ये Darcy's law है. ठीक है, इफ यू पीपल हैव रेड दिस. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो के आ रहा है, दिस के, तो ये हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है. ठीक है, तो इसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी बोलेंगे. सो दिस क्यू इज, आई विल टीच यू दिस डार्सीज लॉ. ओके, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, q is directly proportional to a. So if it is inversely proportional to length and height, sorry, it is inversely proportional to length. Okay, and q is directly proportional to h. सो इन दिस केस ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको रिमूव करने के लिए वी लाइक राइट दिस के, दैट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. सो इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, then its unit is meter per second or meter per day. Okay, this is the unit. Hydraulic conductivity is a function of both the properties of the porous medium and the fluid flowing through it. ठीक है, तो this is the difference between your hydraulic conductivity and intrinsic permeability. क्योंकि हमारी intrinsic permeability जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है ये हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा, ये हमारी मीडियम की भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा. ओके, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड एस्टिमेटेड फ्रॉम द पंपिंग टेस्ट ऑफ द वेल. अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ठीक है, देयर आर सर्टेन लैब मेथड्स, कुछ फील्ड मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो पंपिंग टेस्ट जो होता है ये उनमें से वन ऑफ द मेथड्स होता है टू डिटरमाइन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. अब यहाँ पर पंपिंग टेस्ट इसलिए भी लिखा हुआ क्योंकि सबसे जो रिलायबल मेथड होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालने का वो पंपिंग टेस्ट ही होता है. ओके, okay, so here there is a percentage of fine sand by weight, and this is the hydraulic conductivity K in centimeter per second. Okay, so percentage of coarse sand by weight. So you can see यहाँ पर हमारा percentage of fine sand is increasing, and in this direction hydraulic conductivity is increasing. Okay, so this is a graph. Now you can see कि यहाँ पर 100% sand है which is retained on the sieve with the opening of 1 mm. ठीक है, तो एक सीव है जिसकी ओपनिंग 1 mm है. So this is like the 100% sand, and यहाँ पर hydraulic conductivity they are showing. ठीक है, यहाँ पर 0.69 centimeter per second. Now if you will see यहाँ पर 75%, now you can see कि यहाँ पर coarse sand है. Now then have 75% coarse sand and 25% fine sand. ठीक है, तो यहाँ पर you can see कि hydraulic conductivity decrease कर गई है because यहाँ पर दो तरह के like particle size के दो different size के particles है. Okay, now if you will come over here, okay, so 100% of sand retained on the sieve. Now you can see कि यहाँ पर जो opening है which is 0.7 mm, यहाँ पर 1 mm है. So this is less, यानी कि यहाँ पर particles these are comparatively finer. So hydraulic conductivity it has further like decrease at this point. Okay, so this is the graph that is representing different grain size and the hydraulic conductivities. Then we have transmissivity. ठीक है, transmissivity it represents the transmission capacity of the entire thickness. अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे ना, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में अगर आपको फॉर्मूला लिखना होगा ना तो आप वो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखोगे. ओके, दिस फॉर्मूला, दिस k इज इक्वल्स टू स्मॉल k रो g बाय म्यू. ठीक है, एक ये भी आप लिख सकते हो. बाकी आपका ये जो q इज इक्वल्स टू k i a है, तो यहाँ से भी आप हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ
ट्रांसमिसिविटी क्या है? जो भी हमारा एक्विफर है उसकी जो हम लोग पूरे थिकनेस में उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी निकालेंगे तो दैट विल बी नोन एज ट्रांसमिसिविटी. इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड हॉरिजॉन्टली बाय अ फुल सैचुरेटेड थिकनेस ऑफ द एक्विफर अंडर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ यूनिटी. ट्रांसमिसिविटी इज अ फंक्शन ऑफ द पोरस मीडियम, फ्लूइड एंड थिकनेस ऑफ द पोरस मीडिया. अब फिर से एक बार आते हैं. इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, ठीक है. देन वी हैव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी, ठीक है. अब क्या है? इंट्रिंसिक परमेबिलिटी सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमारा क्या है? फ्लूइड और मीडियम दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है. अब ट्रांसमिसिविटी फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा और एक्विफर की थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी, ठीक है. तो ये सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करेगा. तो के आई इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, यूनिट इज मीटर स्क्वायर. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, मीडियम और फ्लूइड, तो मैंने क्या बताया था? रेट है ये, ठीक है. रेट मतलब मीटर पर सेकेंड या मीटर पर डे, ठीक है. और ट्रांसमिसिविटी, फ्लूइड, मीडियम और थिकनेस, इसीलिए ये मीटर स्क्वायर पर डे या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है. यूनिट्स आपको याद रखनी है, यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर मल्टी लेयर एक्विफर सिस्टम है, टोटल ट्रांसमिसिविटी इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रांसमिसिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल लेयर. तो अगर मल्टीपल एक्विफर थिकनेस है, ठीक है, तो अगर हमें टोटल ट्रांसमिसिविटी निकालनी है तो एक एक इंडिविजुअल लेयर की जो ट्रांसमिसिविटी है उसका सम कर देंगे. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिसिविटी. तो जो हमारी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है उससे हम लोग सैचुरेटेड थिकनेस को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट ट्रांसमिसिविटी. ओके. तो ट्रांसमिसिविटी मैंने आपको बताया कि ये हमारा, लेट मी राइट दिस टी, क्या है? ट्रांसमिसिविटी. देन के हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. एंड बी हमारा क्या है? सैचुरेटेड एक्विफर थिकनेस है, कि हमारा कितना एक्विफर की कितनी थिकनेस में हमारा वाटर फिल्ड है, तो कितना वाटर सैचुरेटेड है, ओके, कितने थिकनेस में. इज इट क्लियर टिल हियर? एनी डाउट्स? ओके, ठीक है. तो ये तीनों चीजें आप, पहली चीज तो इनके फॉर्मूलाज, इनके यूनिट्स आप माइंड में रखोगे और इनमें क्या डिफरेंसेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीजें यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर दी. ओके. लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट बिकॉज आई विल हैव टू सेव दिस ओवर हेयर ओनली, अदरवाइज बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, सेव होने में. ओके, सो दिस इज द परमेबिलिटी एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की रेंजेस हैं, ठीक है, इन द रिप्रेजेंटेटिव रॉक्स. तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट रॉक्स दे रखी है, इनकी इंट्रिंसिक परमेबिलिटी एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दे रखी है. अब आपको ये चीज याद नहीं करनी है, बट एक कंपैरेटिव स्टडी जो होती है, जैसे अगर आपको 2 से 3 रॉक्स उन्होंने दे दी और आपको अरेंज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, लेट्स से, ठीक है, देन इन दैट केस यू शुड नो कि लाइक दिस इज द, यू कैन सी कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, this is 10 to the power of -4 over here, 10 to the power of -t, and this is the intrinsic permeability. Okay, so in this direction you can see intrinsic permeability, hydraulic conductivity हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है. तो आप यहाँ पर देखिए ग्रेवल, ठीक है, एंड यहाँ पर आप कार्स्ट लाइमस्टोन एंड परमिएबल बेसॉल्ट, इनमें आप देखिए कितनी ज्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, क्लीन सैंड, ठीक है. एंड फर्दर अगर क्रिस्टलाइन रॉक है या अनवेदर्ड मरीन क्ले, स्पेशली अनफ्रैक्चर्ड क्रिस्टलाइन रॉक, तो इसकी बहुत ही ज्यादा कम है हमारी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी. ओके, सो दिस इज जस्ट अ डायग्राम जो कि एक कंपैरेटिव स्टडी इसमें दे रखी है आपकी कि किन किन डिफरेंट रॉक टाइप की क्या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है. ओके. ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई, सो देयर आर सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इस चीज पर बेस्ड है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्विफर. ये जीएसआई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है.
It depends on the dynamic viscosity of the fluid. It depends on the aquifer properties. It does not depend on the density of the fluid. If you remember the formula of hydraulic conductivity that I have written, you will be able to answer this question. Write down your answers in the messages. दोबारा पढ़िए ऑप्शन आप लोग। क्या कोई एक आंसर लिखता है, बाकी लोग उसको देख के लिख देते हैं कि अपने आप लिख रहे हैं ये? ओके शिविका, वेरी गुड। ओके ओके, अब आंसर्स करेक्ट आना स्टार्ट हुए। ओके ओके ओके, थोड़ा सा मतलब टाइम लीजिए डेफिनेटली, बट थोड़ा सा अच्छे से रीड करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? चलिए, सो दिस इज के is equals to, we have small k rho g by mu. Okay okay, very good everyone. Now you can see over here, it depends on the dynamic viscosity. बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, हमने फॉर्मूले में देखा, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द एक्विफर प्रॉपर्टीज, तो मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एक्विफर और फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है? एंड देन इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। भाई हमारे फॉर्मूले में डेंसिटी है, कैसे नहीं डिपेंड कर रहा है? तो ये स्टेटमेंट इनका रॉन्ग है। सो 1 and 2 ओनली, सो दिस इज द करेक्ट। ओके, आप एलिमिनेशन टेक्निक्स का भी अपना मतलब यूज कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई एक ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, तो जैसे कि आप इस चीज पे श्योर हैं, ठीक है? इस चीज पे आप श्योर है कि ये तो गलत दे रखा है, ठीक है? तो आप इससे दो ऑप्शन आपने हटा दिए, अब आपको इन दोनों ऑप्शन में देखना है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक। या फिर जैसे अगर आपने ये देखा कि डायनेमिक विस्कोसिटी, या लेट्स से कि आपको ऑप्शन टू कंफर्म है कि दिस इज करेक्ट, ओके? सो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन टू इज 110% आई एम श्योर कि ये करेक्ट है, तो ये गलत, इन दोनों में से कोई होगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक आप पहले लगाइए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, एंड यहाँ पर हाइड्रोलिक पैरामीटर्स कुछ दिए हुए हैं और इनकी यूनिट्स है, ठीक है? आपको मैच करना है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जीएसआई 2024। Okay, very good, everyone. Very good. Okay. So porosity, we know that it is unitless. Okay. So अगर आपको ये चीज कंफर्म है कि पोरोसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ये दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब इन दोनों में से होगा, लेट्स सी, इन्होंने एस का दोनों में 3 दे रखा है, यानी कि आपको क्यू और आर से डिटरमाइन करना है, ठीक है? सो वी हैव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी, ठीक है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था, इट इज द रेट दैट इज मीटर पर सेकेंड, और ट्रांसमिसिविटी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इनटू सैचुरेटेड एक्विफर थिकनेस। सो दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है? सो दिस इज आर का 1 एंड क्यू का 2। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सॉल्व दिस वन। यहाँ पर इन्होंने डिमेंशनल फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है? ओके, लेट मी लाइक थोड़ा सा सही कर दूं मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ओके, थोड़ा सा कट हो गया स्क्रीनशॉट में। ओके,
ओके वेरी गुड, इट इज बी. ओके, सो पोरोसिटी इज डायमेंशनलेस, ए का 2. ठीक है. देन वी हैव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. सो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज मीटर पर डे, यानी कि एल बाय टी. ओके, सो एल टी माइनस 1, यानी कि आपका बी का 1 है. देन so specific storage is 1 by m. ठीक है, so that is 1 by m. This is L to the power of minus 1. So this is C का 4. Okay, and then we have transmissivity. So this is meter square per day, यानी L square T minus 1. So this is the third one. Okay, okay, very good everyone. Solve this one. Okay, 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 very good. Okay, so this is transmissivity is meter square per day. Okay, okay, read this and solve this one. Okay, let me read this for you. Consider the following statements regarding the aquifer property. Hydraulic conductivity is a property of the porous medium and the fluid passing through it. Intrinsic permeability is a function of the fluid passing through the porous media only. Intrinsic permeability is a property of the porous media only. Okay, so these are the three statements that are given. आकाश, read the question once again. Statements दोबारा पढ़िए आप. Okay, now you are correct. Okay. मैंने व्हाट इज टू थिंक इन दिस, है ना. आपने 1 and 2 आई थिंक लिखा है. ठीक है, 1 and 2 ये क्यों होगा पहली चीज. और आपने आई थिंक, मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट अभी जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है. ओके वेरी गुड एवरीवन. ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन. ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मैंने आपको फिर से बताया. इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी क्या है, मीडियम ओनली, यानी कि एक्विफर की प्रॉपर्टी. देन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है, मीडियम प्लस फ्लूइड की प्रॉपर्टी. आप इस तरह से अपने नोट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, मीडियम या फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा. एंड देन वी हैव ट्रांसमिसिविटी. ट्रांसमिसिविटी क्या है हमारा, ये हमारा डिपेंड करेगा मीडियम पर भी, फ्लूइड पर भी, और साथ में एक्विफर की थिकनेस पर भी डिपेंड करेगा. ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है. अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो आप इन सब चीजों से आप लगा सकते हैं कि अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में, जैसे अभी आपने देखा जीएसआई 2025 का क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने अभी तक सीधे क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे थे. ठीक है, अभी तक ये लोग पूछ रहे थे क्वेश्चंस डायरेक्टली, एंड यूनिट से पूछ रहे थे, डिमेंशन फॉर्मूला से पूछ रहे थे. अब यहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया, रिलेशन बिटवीन इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, तो वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया. तो आप देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी, डेंसिटी, इनसे क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, सो दे आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे. अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देंगे. तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हाइड्रोलिक इज अ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फंक्शन ऑफ द दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द पोरस मीडियम एंड फ्लूइड. हाँ बिल्कुल, पोरस मीडियम एंड फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये सही है. इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द फ्लूइड, नहीं मैंने बताया था सिर्फ मीडियम की है. तो यहाँ पर इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पोरस मीडियम ओनली. हाँ सिर्फ पोरस मीडियम पे डिपेंड करेगा, लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा. तो 1 and 3 ओनली. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अभी समझ में आया जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है. ओके ओके, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, हैव सम पेशेंस, है ना.
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा-सा हमें क्वेश्चन अरे ये पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो हम जल्दबाज़ी में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है? जबकि हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं, हमने पढ़ा होता है, ठीक है? सो दिस इज़ फ्रॉम जीएसआई 2021। अब आप देख लीजिए कंटीन्यूअसली दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ट्रांसमिसिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। ये फॉर्मूलाज एकदम आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस-किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आप वहीं से फॉर्मूला अगर आपको पता है, आप यूनिट आराम से लिख सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है? सो कीप दीज़ थिंग्स इन माइंड। हो सकता है वो इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज़ ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने इट वोंट टेक मच टाइम। क्वेश्चन 113 का आंसर लिखिए जल्दी से। व्हाई इज़ इट टेकिंग सो मच टाइम? ओके, 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 वेरी गुड। बी। ठीक है, T इज इक्वल्स टू K इंटू बी। ट्रांसमिसिविटी इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंटू सैचुरेटेड एक्विफर थिकनेस। नाउ डायमेंशन ऑफ द ट्रांसमिसिविटी। Okay, D L square T minus 1. Okay, so this is the dimension form. Okay, 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 fine. Okay, so this is the dimensional formula for transmissivity. Okay, solve this question that was asked in GATE 2024. This is a numerical. A confined aquifer with a uniform saturated thickness of 10 meter has hydraulic conductivity of 10 to the power of minus 2 centimeter per second. Considering a steady flow, the transmissivity of the aquifer in meter square per day is round off to 1 decimal place. Solve this question. This is a very direct and easy question. Has anyone solved? Ma'am, Your voice is breaking. 10 Yes, meter yes. square per day. Actually, your voice is breaking. You are not clearly audible. I think there is some problem in your network. Please write your question in the messages. No, it's wrong. बेजेनी इट्स रॉन्ग। दोबारा देखिए। आप लोग की प्रॉब्लम पता है कि आप लोग यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से। क्वेश्चन पहले रीड करिए। सुचित्रा इट्स रॉन्ग। नो नो, आप लोग यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं। इट्स रॉन्ग। अभी भी जितने लोगों का आंसर है सबका रॉन्ग है। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, शुभम नायक, यू आर राइट, इट्स करेक्ट। ओके, 86.4।
Okay, so let me solve this. So first we are given saturated thickness, that is B. This is given as 10 meter. And then we have K, यानी कि hydraulic conductivity is 10 to the power of -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब यहाँ यूनिट मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में. नाउ यू कैन सी कि इन्होंने मीटर स्क्वायर पर डे में पूछा है, तो ये तो सही है, ये मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, और यहाँ हमारा सेकेंड्स है. तो इस सेकेंड्स को हमें डे में कन्वर्ट करना है. ओके, सो वी हैव 10 to the power of -2. नाउ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड बाय 100, and since this second is in denominator, okay, so we are converting this into day. तो डे में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 60, अगेन 60, so that seconds into minutes, minutes into hours, and then we have 24 hours in a day. ठीक है, सॉल्व दिस. कितना आ रहा है? हाँ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना कि यूनिट्स बहुत ध्यान से पढ़िए. न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, आप उसमें यूनिट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं पर गड़बड़ होती है. आपको फॉर्मूला पता है, आपको सारी चीजें पता है, आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो? यूनिट्स में आप गड़बड़ कर रहे हो. दिस इज 8.64 मीटर पर डे. अब आपका देखिए, यूनिट कन्वर्जन आपने सब कर लिया. बस T इज इक्वल्स टू K इंटू बी, यानी कि 8.64 इंटू 10. ओके, so this is 86.4 मीटर स्क्वायर पर डे. अब आपकी वो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर यूनिट दे रखी है, ठीक है, ताकि आप जब सॉल्व करें तो आप उसी यूनिट में इनको सॉल्व करके दें. ओके शुभम, वेरी गुड, आपने सही सॉल्व किया. बाकी लोगों ने यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ठीक है. तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द यूनिट्स. Okay, I think there was one more numerical. No, no. Okay. Okay, so now your concepts about intrinsic permeability, hydraulic conductivity, and transmissivity are clear. Okay, so now what will happen? अगर हमें transmissivity निकालनी है, तो we know कि hydraulic conductivity to saturated aquifer thickness. So what will happen कि हम लोग को hydraulic conductivity we have to determine of the aquifers and the rocks. So generally अगर हम लोग hydraulic conductivity को determine करने के, we have laboratory method and we have field methods. ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आई हैव टॉट दीज थिंग्स टू द मेंस स्टूडेंट्स. थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको इतना जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए. एंड मोर ओवर लेबोरेटरी मेथड्स में जो दो मेथड्स है, उनमें से एक मेथड्स पे आपके गेट में न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू दीज थिंग्स ओवर हियर. सो वी हैव laboratory methods, and then we have certain field methods. Okay, these laboratory methods, these are further divided into, we can find this by formulas. There is one test known as constant head permeameter. And then we have falling head permeameter. Permeameter. Okay. Then we have certain field methods. The first one is the tracer test. Then we have auger hole method. Then we have slug test, and we have pumping test. Okay. So these are all the methods of determining the hydraulic conductivity of the medium. ठीक है. So laboratory methods, as its name suggests, हम लोग lab में determine कर लेंगे. And then we have field methods. अब formulas की बात करें तो there are certain formulas. एक तो मैंने आपको बता दिया K is equals to CD square. एंड उसके बाद अब हमारा आएगा कांस्टेंट हेड परमीमीटर एंड फॉलिंग हेड परमीमीटर.
अब इन दोनों केसेस में देयर आर डिफरेंट सेटअप्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फील्ड से सैंपल को लेके आएंगे, ठीक है, रॉक का, और उसके बाद लेबोरेटरी में डिटरमाइन करेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, एंड देन वी हैव सर्टेन फील्ड मेथड्स, हम लोग फील्ड में ही जाके डिटरमाइन करेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ दीज लेबोरेटरी मेथड्स, इसकी वजह से ही हम लोग फील्ड में जाके डिटरमाइन कर रहे हैं। Okay, coming to the laboratory methods, hydraulic conductivity, it can be determined by permeameter, in which the flow is maintained through a small sample of the material, while measurements of the flow rate and head loss, these are made. Okay, constant head and falling head types of the permeameter, these are widely employed. So there are two types of permeameter, one is the constant head and other one is the falling head. अब इन दोनों के नेम से ही चीजें पता चल रही हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट हेड परमीमीटर। ओके, सो कांस्टेंट हेड का मतलब है कि जो हाइड्रोलिक हेड है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कांस्टेंट हेड परमीमीटर। नाउ इट कैन मेजर द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द consolidated or unconsolidated formations under low heads. Water enters the medium cylinder from the bottom and is collected as the overflow after passing upward through the material. And now I will write down the formula, but before that let me explain you this by a diagram. Okay, let me write the formula. No, it's not necessary. Wait a moment. Okay, coming to this. अब आपका ये जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो विच इज रिटन विद ए, ठीक है। अभी आप ये सेकेंड वाला डायग्राम इग्नोर करिए, फर्स्ट डायग्राम पे देखिए। दिस इज द डायग्राम और सेटअप ऑफ द फॉलिंग हेड, सॉरी कांस्टेंट हेड परमीमीटर। ओके, सो दिस वन इज द कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेंट वाटर लेवल, यहाँ से हमारा वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से ओवरफ्लो, यानी कि इसके ऊपर जितना भी वाटर जाएगा ये ओवरफ्लो से आउटलेट से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना पानी आएगा ये इसी लेवल तक मेंटेन रहेगा, इससे ज्यादा पानी न बढ़ेगा, और जैसे डिक्रीज भी हो रहा है तो कंटिन्यूअस सप्लाई वाटर की बनी हुई है, ठीक है। तो एक हेड जो है ये हमारा एक कांस्टेंट हेड यहाँ पर मेंटेन है, इसी वजह से इसे हम लोग कांस्टेंट हेड परमीमीटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वाटर हमारा फ्लो करेगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हमारा ये सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। This is the sample that is kept over here, and these are the porous plate, मतलब कुछ प्लेट्स दो लगाई गई हैं, इनके बीच में हमारा सैंपल को रख दिया गया, एंड these plates these are porous. Okay, so this is the sample that we have kept. Now यहाँ पर वाटर आएगा, इधर से मूव कर रहा है, इट इज कमिंग डाउन, एंड यहाँ से इट विल मूव इनटू द सैंपल. Now it will be collected, excess water will be collected over here. यहाँ से जो भी water है ये overflow होके it will come into this container, ठीक है। तो जो भी excess water है यहाँ से इतना यहाँ collected रहेगा, तो जिससे यहाँ पर हमें एक head difference मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक constant head maintain है, एक head यहाँ maintain है, इसके बीच में we will calculate this head, and this excess water it will be collected and this will represent the volume of water. क्या ये setup सबको clear है? This whole setup of this constant head permeameter. Okay. अब यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ certain things are there. Okay. So this L ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लेंथ ऑफ द सैंपल को, ठीक है। दिस H यहाँ पर और यहाँ पर जो हेड है, ओके, सो दिस इज द H रिप्रेजेंटेड। V कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द कंटेनर, एंड T क्या है? हमारा टाइम है, ठीक है, कितने टाइम के लिए हमने ये अपना रन किया। नाउ देन वी हैव एरिया, ये सैंपल का जो भी एरिया हुआ दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A. ओके ओके, लेट मी सो वी हैव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, क्योंकि हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू वी एल डिवाइडेड बाय ए टी एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ वी क्या है? फ्लो वॉल्यूम कलेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम टी, ठीक है। तो ये जो हमारे कंटेनर में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी से। देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल, सैंपल का कितना एरिया है, लेंथ ऑफ द सैंपल, और हेड एच क्या है? कांस्टेंट हेड जो कि अप्लाई किया गया है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू कि फॉर्मूला आया कहाँ से, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाए, और अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप ये चीज लिख सके। अगर आपको डार्सीज लॉ याद है, ठीक है,
यहाँ से आप ये फॉर्मूला, क्यू मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर डे या मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि मीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है, डे इज द टाइम, मीटर क्यूब। कमिंग टू द के, यही हमें डिटरमाइन करना है। आई हमारा हेड डिफरेंस होता है, ठीक है, चेंज इन हेड ओवर लेंथ, ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। ओके, सो दिस इज एच बाय एल एंड देन वी हैव ए, ठीक है। अभी आई विल एक्सप्लेन दिस होल थिंग, जब हम लोग डार्सीज लॉ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस एच, व्हाट इज दिस एल। बट हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको ये डार्सीज लॉ याद है और अगर आपको ये फॉर्मूला आप भूल जा रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लिख पाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, अब हम इसे रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है। ओके, सो वी हैव के, नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी हैव वी एल, this a will go down and h will go down, so this is a t h। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है k is equals to vl by ath। is it clear to everyone? okay, ये चीज I'll just keep it written, okay, I is equals to h by l। okay, I will not erase this so that अगर आप लोग को बाद में देखना हो तो आप लोग देख सकें इजीली। okay, अब कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम जो कि हमारा है फॉलिंग हेड परमीमीटर का, ठीक है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जरूरी नहीं है कि वो पूछे, बट एटलीस्ट यू शुड नो क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सेम चीज रखा है। अब यहाँ पर क्या, फॉलिंग हेड परमीमीटर, मतलब जो हमारा हाइड्रोलिक हेड वो कंटिन्यूअसली फॉल करेगा। इससे पहले क्या था, कांस्टेंट था, अभी क्या करेगा, फॉल करेगा। ओके, यहाँ पर यू कैन सी कि अब यहाँ पर ओवरफ्लो से जो एक्सेस वाटर था निकल जा रहा था, अब यहाँ से इन्होंने एक बार ऊपर तक के पूरा वाटर फुल कर दिया है, ठीक है। अब वाटर विल मूव थ्रू दिस सैंपल, ओवरफ्लो होके कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब क्या होगा, ओवर द टाइम, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअस कोई सप्लाई वाटर की मेंटेन नहीं है, ओवर द टाइम ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर इन्होंने H2 तक दिखाया, मतलब यहाँ तक ये फॉर सम टाइम इट हैज फॉलन, ठीक है। लेट्स से कि आफ्टर 10 मिनट्स, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ठीक है। इनिशियली यहाँ था, आफ्टर 10 मिनट्स इट हैज फॉलन टू दिस पॉइंट। ओके, सो फ्रॉम दिस इज द H1, मतलब इनिशियल हेड कितना था जब हमने वाटर फिल किया था, और लेट्स से आफ्टर टी टाइम हेड हमारा कितना बचा है, T2, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर थिंग्स, अगेन आपका वही सारी चीजें सेम है। ओके, सो दिस L इज द लेंथ ऑफ द सैंपल, 2RT मतलब ट्यूब का क्या रेडियस है, एंड RC मतलब सैंपल का क्या रेडियस है, ठीक है। सो RT ट्यूब का रेडियस, RC मतलब सैंपल का रेडियस, एंड दिस इज द V मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको ये डायग्राम और ये जो सेटअप है फॉलिंग हेड परमीमीटर का? एनी डाउट एनीवन? ओके, so this is the falling head। Constant head, okay, okay, now we have falling head permeameter and its formula is, okay, water is added to a tall tube, it flows upward through the cylindrical sample and is collected as the overflow. The test consists of measuring the rate of fall of water level in the tube, and hydraulic conductivity can be obtained by noting that flow rate Q in the tube. So this Q is equals to pi r t square dH by dt. Okay, so this is the discharge in the tube, and it must be equals to, तो जो हमारा ट्यूब से जितना डिस्चार्ज है इट मस्ट बी इक्वल टू द डिस्चार्ज थ्रू द सैंपल। ओके, so this is the discharge given by this tube, and this is the discharge given by this your sample। okay, so we are equating and integrating, now I am not going to integrate this and I am just directly writing the formula क्योंकि आपको ये formula ही याद करना है directly, ठीक है।
So this thing I have written, but आपको ये सीधा ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? That I am writing right now. Okay, RT. This is RT square by RC square, यानी कि रेडियस ऑफ ट्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सैंपल का स्क्वायर. This is the length of the sample. This is the time. Natural log of H1 by H2. ठीक है, अभी तक इन्होंने फॉलिंग हेड परमियोमीटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है गेट में, बट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हो सकता है वो पूछ ले. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब ये हमारे दोनों लेबोरेटरी मेथड थे ऑफ दिस डिटरमाइनिंग द हाइड्रोलिक conductivity. First one is the constant head permeameter and second one is the falling head permeameter. अब रीजन क्या है कि क्यों हम लोग को फील्ड मेथड्स पे जाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि परमियामीटर वी आर लिटिल रिलेशन टू द एक्चुअल फील्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. क्योंकि हमारा जो सैंपल है अगर हम लोग देखें फील्ड में तो वो अनडिस्टर्ब होगा. अगर हम लोग सैंपल को लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग सैंपल को निकाल रहे हैं फ्रॉम द फील्ड एंड वी आर ब्रिंगिंग इट टू द लैब, तो हमारे सैंपल डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तो उनका जो एक्चुअल फील्ड कंडीशन है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, उनकी पोरोसिटी, पैकिंग या ग्रेन का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मॉडिफाई हो जाती है. ठीक है, सो इसी वजह से जो हमारे फील्ड में जो हमें हमारे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज की वैल्यू मिलेंगी, they will be different from that we have calculated in the laboratory. So this is the reason why we have to go on the field methods to determine the hydraulic conductivities. Now solve this question. This is the question that they have asked based on this constant head permeameter, you can see in 2023. A cylindrical soil sample जिसका diameter दे रखा है 10 centimeter is tested in a constant head permeameter. Volume of 250 centimeter cube of water is collected in 5 minutes when the constant head difference between the tapping points 15 centimeter apart is 5 centimeter. Considering the Darcy flow, the absolute value of coefficient of permeability in centimeter per second is. कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड रिपीट करना है. ठीक है, अदर्स जिनको समझ में आ गया आप लोग तब तक ये स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए. ठीक है, ओके. डू आई नीड टू एक्सप्लेन द डायग्राम? ये पूरा एक बार डायग्राम में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा. तो कांस्टेंट हेड परमियामीटर और फॉलिंग हेड, इनके नेम से ही पता चल रहा है. कांस्टेंट हेड का मतलब है कि जो हाइड्रोलिक हेड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इमेजिन करिए ये कंटेनर है, यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है और कंटिन्यूअसली यहाँ से वाटर की सप्लाई मेंटेन है, तो क्या ये हेड यहाँ से चेंज होगा या नहीं होगा? लेट मी सी हु हैज आस्क्ड. विजयनी बताइए. Yes, ma'am. यू प्लीज इंटरैक्ट विद मी. ओके ओके, तो यहाँ पर ये हेड कॉन्स्टेंटली इतना ही मेंटेन रहेगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, इतना ही रहेगा. ऑल्दो यहाँ से सैंपल से वाटर जा रहा है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई मेंटेन है, तो यहाँ पर ये हमारा हेड चेंज नहीं होगा. अब वाटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मूव करके इट इज लाइक मूविंग थ्रू द सैंपल. अब ये सैंपल से मूव कर रहा है. ठीक है, सैंपल से मूव करने के बाद यहाँ पर आके कलेक्ट हो रहा है. यू कैन सी यहाँ पर इन्होंने वाटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, अब जो जितना भी, अब इतना एक हेड यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना एक्सेस वाटर है ये आके हमने यहाँ पर एक कंटेनर रखा है, यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है. इजंट इट?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम वॉइस क्लियर नहीं हो रही है आपकी। इज इट टू एवरीवन? नो मैम। No, ma'am. I think she is having some network problem. Because if my voice is clear to everyone, but that means I don't have any network problem. Okay, so she must be having some network problem. Vijayani, I think you are having some network problem. Now is it audible to you? I think yeah, you are having network issue. Okay. You प्लीज गो थ्रू दिस क्लास. अगर एक बारी जब अपलोड हो जाए उसके बाद अब दोबारा पूरी क्लास से गो थ्रू करिएगा ये चीज, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. ओके. Others, have you people solved this question? मैंने एक बार दोबारा से आप अपनी थोड़ा सा चीजें चेक करिए. सही है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है. ओके. एक बार दोबारा से रीचेक करिए. आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया है यूनिट कन्वर्जन में. व्हाट अबाउट अदर्स? Okay, so volume is given. V is equals to 250 centimeter cube. Okay, so centimeter में ही पूछा हुआ है, तो we don't have to change this. Now we have soil sample 10 centimeter diameter. We'll come to this. Okay, पहले बाकी चीजें लिख लेते हैं. टाइम कितना है? इट इज 5 मिनट्स. अब यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है सेकंड्स में, तो हमें ये कन्वर्ट करना है. सो दिस इज 300 seconds. ठीक है. So I have converted this minute into second. Yeah, okay. Manak, now it's correct. Then we have H. यानी कि this is 5 centimeter. This is 5 centimeter. Then this is length of the sample. L is equals to 15 centimeter. This is the 15 centimeter. Now coming to the area, they have given us diameter. Okay, so we have to like write the radius. So this is pi r square. Okay, then we have this pi, that is 3.14, and radius is 5 square. Okay, so I think let me calculate this. 78.5 centimeter squares. Okay, now we are going to put all of these values in the formula. K, this is equals to VL by ATH. Okay. So volume is 250 into length is 15 by area is 78.5, time is 300 into H is 5. Okay. So after solving this whole thing, you will get 0.032. अब ये चीज आप देखिए, राउंड ऑफ टू 3 decimal places. Okay. ये राउंड ऑफ करने के बाद है. ठीक है. सो बिफोर राउंडिंग इट ऑफ यू विल गेट इट अराउंड 0.0314847 इसके अराउंड मिलेगा. एंड व्हेन यू विल राउंड इट ऑफ, सो दिस इज 0.032 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है.
तो इसकी जो इन्होंने आंसर में रेंज आंसर की में दे रखी है, सो दैट इज 0.030 so this is from 0.030 to 0.032, ठीक है, ये रेंज इन्होंने दे रखी है फॉर द आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन दिस क्वेश्चन? Okay. Okay, now solve this one. Okay, so this is the last one. Solve this question. After this, we'll end up the today's session. A constant head permeability test was performed on a vertical sand column of height 40 centimeter, cross-sectional area 25 centimeter square. During the test, when the loss of head was 50 centimeter, the volume of water collected in 2 minutes was 300 centimeter cube. Applying Darcy's law, the calculated coefficient of permeability of the sand column is. अब इसमें आपको एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन्होंने डायरेक्टली एरिया दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा आई थिंक जल्दी सॉल्व हो जाएगा. नो चिन्मय, इट्स रॉन्ग. दोबारा चेक करिए व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग. जैसे इससे पहले का एक क्वेश्चन था, मैनेक है सॉल्व इट करेक्टली, बट एक लाइक एक डेसिमल आपका इधर उधर हो गया एंड योर क्वेश्चन इज गॉन. ओके, तो आपको बहुत ध्यान से यूनिट कन्वर्जन करनी है, एक बारी क्रॉस चेक करना है करने के बाद भी इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आपका पूरा पेपर आराम से हो जाएगा, 2 घंटे में ही हो जाएगा, मेरा तो हो गया था. एंड उसके बाद यू हैव लाइक 45 मिनट्स एंड 1 आवर लेफ्ट, उसमें आप आराम से दोबारा से अच्छे से पूरा पेपर चेक करिए, ठीक है. तो गेट के एग्जामिनेशन में आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा. जीएसआई आपको हो सकता है, इट इज स्टिल रॉन्ग चिन्ह, स्टिल रॉन्ग. What about others? Others are, I think, they are not even trying. Okay, Suchitra, you are correct. Okay, so let me solve this. So column height, that is length, is given as 40 centimeter. Then we have area, that is 25 centimeter squares. Then head यानी कि h is given as 50 centimeter. Volume
V is given as 300 centimeter cube and then time is 2 minutes. ओके अब यहाँ पर आप देखिए सारी चीजें सेंटीमीटर में है, सही है. टाइम इज इन सेकेंड्स, सो 2 into 60. This is 120 seconds. Okay, Akash, it is correct. 120 seconds. Okay. नाउ अब आपका सारी चीजें हो गई. आप एक बार ही पहले गिवन लिख लिया करिए और देखिए कि क्या सारी यूनिट सही है. ठीक है. अब उसके बाद K is equals to VL by ATH. So volume is 300 into length is 40 divided by area is 25 into 120 into 50. Okay. Okay. So this is 2 by 25, 0.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसमें इन्होंने कोई रेंज नहीं दी है, डायरेक्टली यही आंसर लिखा हुआ है. ठीक है. आंसर की में. नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? Yeah, let me know. Is it clear? Okay, fine. Okay, so I hope कि जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है, ठीक है, from this intrinsic permeability to hydraulic conductivity, transmissivity, and then we have discussed this field methods, ठीक है, sorry, laboratory methods of constant head and falling head. And I will just give you a brief about these field methods in the last class. आपको ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में, आपके मेंस में ये इंक्लूडेड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है. सो आई डोंट थिंक आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर. आपको जो चीज़ ज़रूरी था आपके लिए, आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू यू. ओके, सो दीज आर द लेबोरेटरी मेथड, कॉन्स्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड. ठीक है. इन पे बेस्ड आपने देखा अभी तक इन्होंने फॉलिंग हेड से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट स्टिल यू शुड नो द फॉर्मूला. And these were the numericals that they have asked from this constant head permeameter test. Okay, so this is all I kept for today's class, and if you people have any doubt, then feel free to ask, and if not, then I'll be ending the session here only. Okay. Ma'am. Ma'am, Yes. Yeah, go ahead. मैम जो लैबोरेटरी मेथड का जो थियोरी पार्ट है थोड़ा स्क्रीनशॉट लेनी थी. I will send these to sir. He will upload. Okay. This one. यस मैम, उसके बाद जो थियोरी. सारी चीजें आपके डीके डॉट बुक में दी हुई हैं. ठीक है. If you have time and if you want, you can go through this DK dot book. Okay. Is it okay now? यस मैम, थैंक यू. Okay. मैम. Yes, बताइए. मैम एक्चुअली मैंने मैसेज किया था, जो मेंस का कॉपी का कुछ सैंपल है क्या? Actually, I have the copies, but the problem is I cannot directly share my notes to you and nor my answer copies. Okay.
सो इफ यू पीपल वांट कि मैं अपनी मेंस के आंसर शीट्स शेयर करूं, सो प्लीज आस्क फ्रॉम द सर, ठीक है। तो उसके बाद आई विल लाइक प्रोवाइड द पीडीएफ टू सर एंड ही विल अपलोड इट इन द एप्लीकेशन, ठीक है। ओके। तो मैं मतलब एडमिन को क्या अप्रोच करे, जो मेंस का कॉपी शेयर करने के लिए डायरेक्टली बोले? हाँ, आप उनसे बोल सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कि बिकॉज़ ही वुड बी मे बी लाइक कि आप पहले अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लो, यस है ना? यस। है ना? तो इट्स ओके, आप मैंने ये चीज़ आपको बताई, ठीक है? अभी मेरे पास टाइम नहीं था मैसेज देखने के लिए, बिकॉज़ अभी मेंस जो स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो दे आर कंटीन्यूअसली सेंडिंग मी देयर कॉपीज़, तो बहुत सारे मैसेजेस हो गए हैं, सो आई एम नॉट एबल टू सी। ओके, सो वन थिंग आई हैव टोल्ड यू कि आप बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स मत बनाइए, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट में नोट्स बनाइए जो भी चीज़ें। अभी जैसे इसका एक एग्जांपल जैसे अभी मैंने यहीं पर दिया है, ठीक है? इन द क्लास आई विल टेल यू कि किस तरह से करना है चीज़ें। अब जैसे ये चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ से आप एक स्नैप ले सकते हैं। वेट अ मोमेंट। इस तरह से जैसे अगर आप कोई भी चीज़ आगे डिटेल में आपको डिस्कस आपने नोट्स में लिखी है, तो अब जैसे स्टार्टिंग में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का डिटर्मिनेशन में आप ये चीज़ इस तरह से बना लोगे तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने ये जो लिखा है, तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। अगर आप जैसे कि मैं लेंदी नोट्स इसलिए मैं मना कर रही हूँ, स्पेशली अगर आपका प्रीलिम्स में एमसीक्यू टाइप्स आप एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप इतना सारी चीज़ें रिवाइज कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यू हैव लाइक अ ह्यूज सिलेबस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो उस केस में जैसे अगर आपने इस तरह से लिख के रखा हुआ है, तो आपको डायरेक्टली आपने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, अच्छा मीडियम की प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मीडियम प्लस फ्लूइड की प्रॉपर्टी। सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड दैट आई हैव रिटन ओवर है। अब इसके आगे आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, यूनिट लिख लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं, ऑल द फॉर जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है। तो ये चीजें आप लिखिए इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, ठीक है। अभी यहीं पर लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आप हेडिंग लिखिए इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ फ्लूइड, बस इतना लिखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इतनी चीज आपको लिखनी है, ठीक। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप शॉर्टकट में थोड़ा सा नोट बनाइए। उसके बाद ये चीजें आप लिखोगे, परमिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पोर, ये चीज है। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। सो अब ये चीज लिखनी है, तो ग्रेन साइज, ठीक है, इंक्रीजेस, इससे क्या होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद अगर पुअरली सॉर्टेड है, तो पुअरली सॉर्टेड, तो आपका जो परमिएबिलिटी है इट विल डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने शॉर्टकट में नोट्स बना सकते हैं, ठीक। अब जैसे नोट्स बनाना, देखिए ये एक थोड़ा सा इट इज अ काइंड ऑफ आर्ट नोट मेकिंग, ठीक है। तो ओवर द टाइम जब आप धीमे धीमे अभी थोड़ा नोट्स बनाओगे, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं आता था, ठीक है। मैंने भी अपने लास्ट ईयर 2023 में जब मैंने मेंस दिया था, तो मैंने बहुत लेंथी नोट्स बनाए, बट आफ्टर गिविंग मेंस मुझे रियलाइज हुआ कि इतना ज्यादा कंटेंट की भी जरूरत नहीं जितना मैंने बहुत डिटेल में लिख लिया है, ठीक है। तो मुझे उतना जरूरत है, बिकॉज आप एक एक चीज अगर स्पेशली अगर मेंस की बात करें, तो आप वो चीजें एकदम याद करके उस तरह से नहीं लिख पाओगे। आपके माइंड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीजें पता है, तो आप वहां पर जाके अपना लिख सकते हो आंसर्स, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, आपको बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं लिखनी, आप थोड़ा एक बार ही नोट्स बनाओगे, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया होगा, अच्छा ये दो लाइंस मैंने फालतू की लिख रखी है, ओवर द टाइम फिर आप फिर से अपना नोट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाओगे, ठीक है। तो धीमे धीमे जब आप बनाना सीखोगे, अभी आप क्या करें, आप एमएससी में है प्रदीप, यस मैम, लास्ट ईयर। यस लास्ट फर्स्ट ईयर ना, इसी ईयर। वजह से, लास्ट ठीक है। ईयर। ओके ओके, सो आप क्या करिए ना, आप जैसे थोड़ा सा नोट्स बनाइए, तभी आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। एकदम से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि डायरेक्टली आप एक बार में परफेक्ट नोट्स नहीं बना लोगे। आप थोड़ा सा बनाएंगे, आपको फिर लगेगा, अच्छा आप अपने नोट से दो बार, आप एक काम करिए ना, यहाँ से जैसे मैंने ये जो चीजें आपको बताई यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा बना के देखिए, ठीक है। दूसरी चीज आप चाहें तो आप बुक रीड कर सकते हो सकता है एक दो पॉइंट्स आपको, क्योंकि मैं अभी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है, नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है, तो आप बिल्कुल गो थ्रू करिए बुक से, ठीक है। डीके टॉड मैंने आपको बताई है मेरे सब्जेक्ट के लिए, हाइड्रोजियोलॉजी के लिए, तो आप गो थ्रू करिए, आप बुक से हो सकता है आपको एक दो पॉइंट्स कहीं और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है चीजों की, वो थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने अपने ये जो पीपीटीज बनाए हैं, ये मैंने डीके टॉड से ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे मैंने उस टॉपिक को, कंटेंट को, ठीक है, कैसे वहां से कंटेंट निकाला है और कैसे मैंने पीपीटी बनाई है। तो सिमिलरली आपको भी एक आइडिया लगेगा कि बुक पढ़ने के बाद किस तरह से मुझे अपनी नोट मेकिंग करनी है, ओके। ओके मैम। इज इट क्लियर नाउ? ओके
ओके, यस मैम। हेलो मैम। यस हेलो मैम, थोड़ा प्रीवियस क्लास से एक डाउट था ओके। मैम। वो स्टोरेज कोफिशिएंट एंड स्पेसिफिक स्टोरेज कोफिशिएंट में डिफरेंस क्या है? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि थ्योरेटिकली मतलब लुकिंग लाइक सिमिलर। सिमिलर नहीं है नंदिनी, मैंने जब पढ़ाया था ना, मैंने तभी आपको बताया था कि जो स्टोरेटिविटी है यानी कि जो स्टोरेज कोफिशिएंट है उसमें एरिया लिया जाता है। मैंने आपको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और जो आपका इलास्टिक स्टोरेज है, ठीक है, वहां पर आपको वॉल्यूम लेना है। आप एक बार दोबारा से डेफिनेशन में गो थ्रू करिए। मैंने जब ये चीज क्लास में एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। क्या क्लासेस अपलोड हुई हैं, लास्ट क्लासेस जो मैंने ली है? जी मैम। हाँ, तो आप एक बार दोबारा से क्लास से गो थ्रू करिए, ठीक है। तो आप वहां पर देखेंगे, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने वो डेफिनेशन में एरिया हाईलाइट किया था। मैंने वहीं पर आपको बताया था कि आपको स्टोरेज कोफिशिएंट, ठीक है, एंड आपका स्पेसिफिक स्टोरेज यानी कि इलास्टिक स्टोरेज, इसमें आपको डाउट होगा, मुझे पहले से ही पता था। इसी वजह से वहीं पर मैंने चीजें हाईलाइट की थी कि जो आपका स्टोरेज कोफिशिएंट यानी कि जो स्टोरेटिविटी होता है, अब दो टर्म है, एक मिनट ठीक है। आपको दोनों टर्म्स याद रखने हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टोरेटिविटी या फिर हम लोग कह सकते हैं स्टोरेज कोएफिशिएंट। देन वी हैव स्पेसिफिक स्टोरेज या फिर इलास्टिक स्टोरेज। ये ये दोनों टर्म्स सेम है, ठीक है। स्पेसिफिक स्टोरेज और इलास्टिक स्टोरेज और स्टोरेटिविटी, स्टोरेज कोएफिशिएंट। यहाँ पर हम लोग एरिया लेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लोग वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, कि कितने वॉल्यूम से हमने वाटर लिया है और यहाँ कितने एरिया से लिया है। इसी वजह से स्टोरेटिविटी का फॉर्मूला आपका डेल्टा वी ए इंटू एच होता है, ठीक है। दिस वॉल्यूम, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये जो एरिया है ये है एक्वीफर का एरिया, ठीक है, जो कि हमारे स्पेसिफिक स्टोरेज में एक्वीफर का वॉल्यूम लेंगे हम लोग, ठीक है। दिस वी इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कितने हेड डिक्लाइन हुए और कितने एरिया में, एरिया ऑफ द एक्वीफर। सो दिस इज स्टोरेटिविटी, आपका एरिया ऑफ एक्वीफर होता है, और स्पेसिफिक स्टोरेज आपका वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर होता है, ठीक है। आप एक बारी आप दोबारा से गो थ्रू करिए, यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट टर्म क्लियर होने चाहिए कि स्टोरेटिविटी और स्टोरेज कोएफिशिएंट एक चीज होता है, स्पेसिफिक स्टोरेज और इलास्टिक स्टोरेज एक चीज होता है, ठीक है। और स्टोरेटिविटी में हम लोग एरिया लेंगे, स्पेसिफिक स्टोरेज में हम लोग वॉल्यूम लेंगे। ये चीज जब आपको क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप याद कर पाएंगे। और ये चीज, अब स्टोरेटिविटी दिस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक यील्ड ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपके यूज होंगे कन्फाइंड के केस में, और स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन अनकन्फाइंड के केस में यूज होंगे, ठीक है। जो ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर अभी मैंने एक शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि क्लियर हो गया हो, एंड इफ नॉट तो आप एक काम करिए, दोबारा से आप उस क्लास को फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर। इज इट ओके नंदिनी? यस मैम। ओके। अभी जो मैंने बताया ये क्लियर है आपको, यहाँ समझ में आया? यस मैम, अभी समझ में आया। और थोड़ा नेटवर्क की इशू बीच बीच में आता है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है समझने अच्छा में। अच्छा, आपके साथ अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा से आप क्लास देखिए, अभी आप लोग के पास से बहुत टाइम है, ठीक है। तो आप दोबारा से एक बारी क्लास से गो थ्रू करिए, तो उससे आपका क्या होगा कि आपका दोबारा से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक। तो आप चाहे तो 1.25x में भी क्लास देख सकते हैं, तो इससे आपका थोड़ा सा जल्दी क्लास हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट जो है होगा आपको दोबारा से फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड गो थ्रू दीज नोट्स, जो आप अपने नोट मेकिंग कर रहे हैं, अभी टाइम है अच्छा खासा आपके पास, तो आप नोट मेकिंग कर लीजिए। और जो भी मैंने बताया, आई ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम दीज पीपीटीज ओनली, ठीक है। तो इससे ही नोट्स आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि वहां से थैंक यू। मैंने ऑलरेडी बुक से कंटेंट अलग करके मैंने आपको दे दिया है। अब आप यहाँ से अपना नोट मेकिंग करिए एंड गो थ्रू दीज नोट्स रेगुलरली, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने आज पढ़ाया, आप एक बारी कल उसको आपके पास टाइम हो तो आप उसको एक बारी रिवाइज कर लीजिए। देन आप एक अपना वीकली रिवीजन का शेड्यूल फिक्स कीजिए, ठीक। एवरी संडे इफ यू वांट यू कैन कीप योर संडेज फॉर वीकली रिवीजन। जो भी आपने विद इन 1 वीक जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है, तो वो आप वीकली रिवीजन करिए। और उसके बाद एक मंथ के एंड में आप मंथली रिवीजन फिक्स कर लीजिए, ठीक है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इससे आपका रिवीजन आपका होता जाए। और मैंने ये चीज मेंस वाले स्टूडेंट्स को भी समझाई और आपको भी मैं समझा रही हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। इट इज लाइक
completely natural to forget the things. Okay, so रिवाइज कैसे चीजें याद रखें, क्योंकि अभी आप जब एग्जाम तक पहुंचोगे आपके पास बहुत ह्यूज सिलेबस हो चुका होगा, उसका एक ही सोल्यूशन है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। ठीक है, तो आप कोई भी चीज जब आप बार बार, मुझे कैसे याद है कि k इज इक्वल्स टू VL बाई ATH, मैंने इतनी बार पढ़ा कि मुझे चीजें याद हैं। ठीक है, तो मेन से पहले भी मैंने nearly like 4 to 5 times of each subject I have like revised. ठीक है, तो जब आप मल्टीपल टाइम्स चीजों को याद करेंगे आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इससे आप जो है लॉन्ग टाइम तक आप रिटेन कर पाएंगे चीजें। इज इट ओके टू एवरीवन? यस। एंड वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग ना, एक रफ नोट रखिए अपने पास और पेन, आप रफ हैंड से स्क्रिबलिंग करते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें कीवर्ड्स लिखते रहिए, तो उससे एक मसल मेमोरी होती है हमारे हैंड की। ठीक है, तो उससे भी आपकी एक लाइक मेमोरी बनेगी, आपकी लिखने की भी एक हैबिट हो जाएगी। और लिख लिख के, पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वेन एवर आई राइट तो मेरा रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, सो आप लिख लिख के जब याद करेंगे चीजें तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगी, लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। ओके, okay, so I am ending this session here only. Okay, thank you so much everyone for joining. थैंक यू मैम। थैंक यू।